Hello everyone, welcome back to Mole Concept Lecture 6. I would like to welcome you all on our next session on Mole. I hope you guys are really thoroughly revising the concepts and are really into it, like you're solving it effectively. Fine. So let us start our today's session, which is again on stoichiometry. So let us move ahead. See, we will continue the concept which we started earlier, like we'll start with the stoichiometry only. In the last session we started basic stoichiometry, right? We started basic stoichiometry, so we will move ahead with the same, like we will continue stoichiometry. Fine. So let us continue stoichiometry that we took up in the last class. The basic thing that we covered was mole analysis. The basic thing which we took up was mole analysis. In order to understand this, let us say we have a reaction like this: AA plus BB forms CC plus DD, and A naught and B naught are the moles of reactant which react. These are the moles of reactant which actually undergo reaction, right? Which undergo reaction, right? Fine. Now let's say C naught and D naught. These are the moles of product formed. These are the moles of product formed. Then what do? We simply apply a relation A naught upon A equals B naught upon B equals C naught upon C and D naught upon D. This is the basic result. I hope you must have solved few problems on it and you must have gained confidence out of it. So let us move ahead. Our next our next topic to be covered is mass analysis. One subsequent topic is mass analysis. Okay, this is our topic, mass analysis. See, what are we going to do in mass analysis? It's pretty simple. See, if you have a reaction like this, AA plus BB forms CC and DD. I hope you are comfortable. Small a, small b are the coefficients of reactants, and small c and small d are the coefficients of the product. Fine. So I hope you guys know this. Now, if A moles of A react with B moles of C, forming C moles of D and forming D moles of D, then mass will be A times Ma, B times Mb, C times Mc, and D times Md. Here, Ma, Mb, these are the molar masses, or we can say molar mass of A and B. See, let's say we have a reactant A whose molar mass of is A actually. So mass of 1 mole of A is Ma. So what is mass of A moles of A? It is A times Ma. ठीक है, अपन इस बात को समझ सकते हैं, जैसे एक मोल का मास Ma है तो A मोल्स का मास A into Ma होगा. Likewise, यदि एक मोल B का मास Mb है तो B मोल्स B का मास B into Mb होगा. तो अपने को यही करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है. यदि आपको मास एनालिसिस दिया है तो कन्वर्ट मास टू मोल्स. ठीक है, फिर आप मोल एनालिसिस कीजिए. ठीक है, उसके बाद फिर से कन्वर्ट मोल टू मास. बेसिकली अपने को करना तो यही है, अपने को मोल एनालिसिस ही करना है. ठीक है ना, अपने को ना मोल एनालिसिस ही करना है. यदि मास की अपन बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में मास पूछा जा रहा है, तो अपन करने क्या वाले हैं, मास को मोल में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, और फिर मोल को वापस मास में कन्वर्ट कर देंगे. ये बहुत आसान काम है. ठीक है, आई होप यू गाइस आर रेडी. सो लेट अस स्टार्ट. तो देखो, वी कैन स्टार्ट विथ एन इजी एग्जांपल. लाइक लेट से तुम्हारे पास है N2 plus 3H2 forms 2NH3, and you have been given, let's say, 28 gram of N2. So question है, what mass of NH3 will be formed? What mass of NH3 will be formed?
ठीक है. From we have been given 28 gram of N2. So see, it is very easy. What are we supposed to do? We need to convert this 28 into moles. So how would we do that? See, 28 is the molar mass of nitrogen. So we have 1 moles of N2. So taking it A naught, it is 1, and let's say it is C naught. So we can write A naught upon 1 is C naught upon 2. So 1 by 1 is C naught by 2. So what is C naught over here? C naught is obviously 2. So 2 moles of NH3 are formed. We can understand that 2 moles of NH3 are formed. So we can calculate mass of 2 moles. So mass kya aayega? Let us say mass will be 2 times 17, that is the molar mass. So the answer is 34. Fine. So I hope you guys have understood this. ये बात काफी आसान है और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि हमें करना क्या है. जैसे कि अपने को 28 ग्राम मास दिया हुआ था and we converted into moles. ठीक है. फिर हमने क्या किया? We again took a mole analysis. फिर मोल को अपन वापस मास में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. तो इस तरह से हमारा जो है वो आंसर आ जा रहा है. ठीक है. तो अब आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी व्हाट इज, जैसे ये एक रिएक्शन है. लेट्स से Fe reacts with O2 and forms Fe2O3. So this is 2Fe, this is 3 by 2 O2. So there are certain questions like what mass of O2 will react with, what mass of O2 will react with 56 gram Fe, and the second part of the question is calculate the mass of Fe2O3 formed. So we have to calculate the mass of Fe2O3 formed as well. So we can take it very easy way. Like, see, we have been given Fe, right? So the molar mass of Fe is obviously 56. So we have A naught is equal to 1. So we can simply apply the result A naught by 1. And let us assume this is B naught and this is C naught. Is B naught upon 1.5. The coefficient for A is 2. Fine. So what do we get? 1 by 2 is equal to B naught upon 1.5. So what do we get? B naught is equal to 0.75. Fine. So mass of 3 by 4 mole O2. How do we calculate this? 3 by 4 times 32. This is 24 gram. So that is our answer. I hope you guys have understood this. Now moving to Fe2O3. So we can simply apply the result A naught by 1. Sorry, again, it's not 1. A naught by 2 is equal to C naught by 1. So 1 by 2 is C naught. So molar mass, let us calculate the molar mass of Fe2O3. It is 2 into 56 plus 16 into 3. So it is 112 plus 48. It is 160. So we can see mass of 1 mole is 160. So mass of half mole will be again 160 by 2, that is 80 gram. Fine. So I hope you guys have understood. This is very easy. It's not a very difficult task. As you can see, we have to convert the moles which have been given into, we have to convert the mass which is given into moles. And again, we are supposed to do the same thing, that is mole analysis. And if we get the moles, then we can convert it into mass. And we can again do the mass analysis. Fine. तो मास को अपने को क्या करना, मोल में कन्वर्ट करना, फिर मोल को मास में कन्वर्ट कर देना. इतना ही काम है. आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है. क्या करना है, मास को मोल में, फिर मोल को वापस मास में. ठीक है ना. तो आगे का हम सेक्शन स्टार्ट करते हैं. तो देखो अब नेक्स्ट काम क्या है अपना. हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ रेसिड्यू, calculate the mass of residue obtained upon heating 200 gram of calcium carbonate. Fine. So we know calcium carbonate is solid. इसको अपन हीट करते हैं तो एक रिएक्शन होती है, कार्बन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जो कि सॉलिड होता है.
प्लस CO2 गैस बन जाता है, तो ये तो निकल जाएगा। तो दिस इज आवर रेसिड्यू। तो हमें करना क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ CaO formed in the reaction. We have to calculate the mass of CaO formed in the reaction. So let us see how are we going to go about it. See, very simple. We know that that हमें करना क्या है. What are we supposed to do now? We have to convert mass into moles. So if you calculate molar mass of CO, let us take up this is A naught, this is B naught, and this is C naught. We know that the molar mass of CaCO3 is obviously 100. So number of moles is 200 upon 1. This is 2. So 2 upon 1 is B naught upon 1. So B naught is again 2. So mass of 1 mole CaO, that is 40 plus 16, it is 56 gram. So mass of 2 moles CaO will be 56 into 2, that is 112 gram. But remember, you have to balance these reactions, because if you don't balance it, then the result will obviously be incorrect. So make sure you balance the reaction before you go about this problem solving method. तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो रिएक्शन दे रखी है उसको बैलेंस जरूर करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स किए मास एनालिसिस के ऊपर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है कि लेट अस से कैलकुलेट the mass of Al2O3 formed through combustion of 27 gram of aluminium with O2। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को ना रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। Al जो है रिएक्ट करेगा O2 के साथ एंड इट विल फॉर्म Al2O3, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3/2 होगा। तो मैं फिर से क्या करना है, 27 ग्राम यानी कि कितना मोल हो गया, 1 मोल। इसको A0, इसको B0 और इसको C0 बोल देते हैं। तो A0/2 is equal to C0/1। So 1/2 is C0। तो हमें क्या करना है, मास ऑफ 1/2 मोल Al2O3 कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू इसका मोलर मास 27 इंटू 54, 54 प्लस 48, 108, 54 प्लस, just a minute, this is 27 into 54, 54 plus 48 is 102, correct। So this is 51 gram। So likewise you can calculate, fine। तो आपको करना क्या है, जो गिवन मास दिया है उसको कन्वर्ट करना है मोल्स में, मोल्स को वापस मास में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना बेसिक मास एनालिसिस, जिसमें हमें करना क्या था, मास एनालिसिस में हमें सीधा करना ये था कि मास को मोल में कन्वर्ट करना है, फिर मोल को वापस मास में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। देखो वॉल्यूम एनालिसिस जो है ज्यादातर हम किसके लिए करते हैं, गैसेस के लिए करते हैं, गैसेस के लिए ही करते हैं। अब जैसे मान लो अपने पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD। अब यहाँ पे सब के सब क्या है, गैसेस हैं। तो अपने पास रिलेशन है A0/A इज इक्वल टू B0/B इज इक्वल टू C0/C D0/D। यहाँ पे ऑब्वियसली A0 और B0 क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, और C0 D0 क्या है, दीज आर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अपने को करना क्या है, अपने को इसको सी हम लोग ये जानते हैं कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो 10 मोल का 10 into 22.4 लीटर है। तो जैसे जैसे हम मोल्स बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं VA विल बी प्रोपोर्शनल टू A0। उसी तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, VB विल बी प्रोपोर्शनल टू B0, VC विल बी प्रोपोर्शनल टू C0 एंड VD विल बी प्रोपोर्शनल टू D0। तो ये वाली जो रिलेशन लिखेंगे हम कुछ तो इस तरह से लिखेंगे VA/A
is equal to VB by B is equal to VC by C is equal to VD by D। ठीक है, यहाँ पे VA और VB क्या है? वॉल्यूम ऑफ A and B reacted, A and B reacted at STP। VC VD क्या है? वॉल्यूम ऑफ C and D formed at STP। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। देखो हमने अभी तक सीखा क्या है? हमने सीखा है कि कुछ भी हो हमें तो मास जैसे पिछले केस में मास को मोल में कन्वर्ट करके वापस मोल को मास में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है उसकी जरूरत नहीं है। जहां पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक मोल हर गैस का एसटीपी पे 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करता है। तो इस बात को हम यदि ध्यान में रखें कि हर गैस का एक मोल का वॉल्यूम जो है एसटीपी पे 22.4 लीटर ही होता है। तो taking that into consideration, we have understood that V, that is volume, is directly proportional to number of moles. तो हम डायरेक्टली क्या रिलेशन लिख सकते हैं? VA by A is equal to VB by B is equal to VC by C is equal to VD by D। ठीक है, तो हम ये वाली रिलेशन जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सारे सेक्शंस हमारे कवर हो गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट the volume of NH3 gas, calculate the volume of NH3 gas obtained upon reaction of 1 liter N2 as per the given reaction at STP। ठीक है, STP पे दे रखा है हमें डेटा। देखो क्या है, N2 gas reacts with 3H2 gas and forms 2 NH3 gas। तो अब जैसे देखो इसको VA/1, इसको A पकड़ते हैं, इसको B पकड़ते हैं और इसको C पकड़ते हैं, तो इज इक्वल टू VB/3 इज इक्वल टू VC/2 आएगा। तो 1 लीटर N2 है यानी 1/1, और हमें NH3 का निकालना है तो VC/2 कर लेते हैं। तो VC क्या आया? 2 लीटर आ गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced upon combustion of 10 liter propane at STP। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड अपॉन कंबशन ऑफ 10 लीटर प्रोपेन एट STP। तो इसमें करने क्या वाले हैं अपन? देखो सीधा सा केस है, हम लोग जानते हैं CXHY reacts with X plus Y/4 O2 forms XCO2 and Y/2 H2। तो प्रोपेन होगा C3H8, तो X plus Y/4 आ गया 5, तो क्या मिलेगा? 3CO2 plus 4H2O। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हम क्या, इसको A बोल देते हैं, इसको लेट से B बोल देते हैं, अपना कुछ भी ले सकते हैं। तो VA/1 इज इक्वल टू VB/3। तो VA तो अपने पास 10 है, तो 10/1 इज VB/3। तो VB कितना आया? VB आ गया 30 लीटर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? तो चलो बच्चों हम आगे बढ़ते जाते हैं अब। तो बेसिकली यहाँ पर जो रिलेशन था A0/A इज इक्वल टू B0/B इज इक्वल टू C0/C, वो कन्वर्ट हो गया कि इसमें VA/A इज इक्वल टू VB/B इज इक्वल टू VC/C, इस तरह से रिलेशंस में कन्वर्ट होता गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अ हाइड्रोकार्बन CXHY upon combustion produces
CO2 gas and H2O gas. If 1 liter of CXHY produces 4 liter CO2 gas and 5 liter H2O gas in steam, then calculate the formula of the given hydrocarbon. ठीक है, तो अब चलो बच्चों इसको ट्राई करते हैं अपन। तो देखो सीधा सा रिजल्ट होता है CXHY will react with X plus Y by 4 O2 will give you X CO2 plus Y by 2 H2O। ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखो क्या दे रखा है तुम्हारे पास, ये है कि V इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C और इसको D। तो VA by 1 is equal to VC by X is equal to VD upon Y by 2। तो पहले इन दोनों के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 by 1 is equal to VC by is equal to 4 by, यहाँ पे X होगा 4 by X है ना, तो X यहाँ आ गया 4। Moreover VA by 1 is equal to VD upon Y by 2 है, यानी 1 by 1 is equal to 5 upon Y by 2। तो Y by 2 5, तो Y क्या आया, Y आया 10। तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया C4H10। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करने वाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0.1 मोल ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, यहाँ थोड़ा मिक्स्ड है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, मास 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 वॉल्यूम। तुम्हें मोल मोल एनालिसिस ही करना है, जैसे मोल से तो मास में जा सकते हो, मोल से वॉल्यूम में जा सकते हो। तो बेसिक वही रिजल्ट है, A नॉट बाई A इज इक्वल टू B नॉट बाई B इज इक्वल टू C नॉट बाई C इज इक्वल टू D नॉट बाई D। तो बेसिक फंडा क्या है कि तुम्हें मोल मोल एनालिसिस ही करनी है। तो क्वेश्चन है 0.1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन CXHY upon combustion produces 17.6 ग्राम CO2। तो करना ये है, डिटरमिन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द गिवन हाइड्रोकार्बन। ये जो गिवन हाइड्रोकार्बन है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें निकालने हैं। तो अब देखो क्या है कि तुम्हारे पास है CXHY जो रिएक्ट करेगा X प्लस वाई बाई 4O2 के साथ, बनाएगा XCO2 प्लस Y बाई 2 H2। तो यहाँ पे यदि हम मोल्स की बात करें तो A नॉट बाई 1, इसको B नॉट बता देते हैं और इसको C नॉट बता देते हैं, इज इक्वल टू C नॉट बाई X। तो A नॉट तो हमें 0.1 दे रखा है, C नॉट निकालना है। तो CO2 का मोलर मास होता है 44, तो ये आया कितना 0.4, ये आया क्या 0.4 बाई X। तो X क्या आ गया बताओ, X आ गया 4। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए उसके अंदर कार्बन एटम हो गए 4। तो इस तरह के भी कुछ बेसिक एग्जांपल्स आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखो बच्चों आज हमने क्या किया है कि बेसिक कुछ चीजें करी हैं कवर, जैसे मास मास एनालिसिस किया है और वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस किया है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइचियोमेट्री विथ impure reactants, यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी बोला जाएगा। देखो कई बार क्या होता है कि रिएक्टेंट 100% प्योर नहीं होता है,
जैसे इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 obtained upon combustion of 100 gram of 60% pure sample of CaCO3। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे CaCO3 रिएक्ट कर रहा है, CaO सॉलिड और CO2 गैस बनाएगा। अब हमें समझने वाली बात है कि ये वाली रिएक्शन जो है उसमें मान लो CaCO3 का एक सैंपल है तुम्हारे पास, तो उसमें कुछ पार्ट प्योर है और कुछ पार्ट इम्प्योरिटी है। तो हमें ये समझने की कोशिश करना है कि प्योर सैंपल रिएक्शन देगा, इट विल गिव रिएक्शन, और ये क्या करेगा, इट डज नॉट गिव रिएक्शन, इट विल नॉट गिव रिएक्शन। ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि ये रिएक्ट तो जो है वो करेगा नहीं। तो हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। तो हमें करना क्या होता है, प्योर जो सैंपल है उसका मास निकालना होता है। वी नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ प्योर सैंपल। ठीक है, तो मास ऑफ प्योर CaCO3, देखो बिकॉज प्योर वाला पार्ट ही रिएक्ट कर रहा है, राइट, इज इक्वल टू 60% ऑफ क्या 100, तो आ गया 60 ग्राम। तो अब 60 ग्राम के हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसको यदि हम A0 पकड़ लें और इसको C0 पकड़ लें, तो A0 क्या आएगा, 60/100 यानी 0.6। ठीक है, तो यानी हमारे पास 0.6 मोल है। ठीक है ना, तो 0.6 मोल के लिए हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 0.6/1 इज C0/1, तो C0 आया 0.6। तो मास ऑफ 0.6 मोल CO2 कितना आएगा, ये आएगा 0.6 इंटू 44 ग्राम। तो इस तरह से अपन जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपको एक नए तरीके से, जैसे पिछले केस में हमने देखा कि परसेंटेज प्योरिटी की बात हो रही थी, तो हम लोग ये शायद समझ पा रहे थे कि जो प्योर पार्ट है वही रिएक्ट करता है। ठीक है ना, जो प्योर पार्ट है उस वही रिएक्ट करता है और जो इम्प्योरिटी है वो रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मान लो जिस तरह से पूछा गया, इफ 100 ग्राम ऑफ CaCO3 produces 22 gram of CO2 as per the given reaction, then calculate the percentage purity, then calculate the percentage purity of CaCO3 sample। देखो अब इसको कैसे करेंगे, तुम्हारे पास जैसे CaCO3 है, ठीक है ना, इसको हीट करोगे तुम, तो CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। ठीक है ना, तो 100 ग्राम यानी कि होना क्या चाहिए था, 1 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता। तो theoretical mass of CO2 assuming 100% प्योर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 44 ग्राम। बट एक्चुअल मास क्या है, एक्चुअल मास ऑफ CO2 क्या है, एक्चुअल मास ऑफ CO2 है 22 ग्राम। तो 100% प्योर जो सैंपल था वो 44 ग्राम बना था, और अब जो एक्चुअल सैंपल है वो 22 ग्राम बना रहा है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या आया, ये आएगा एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield into 100 यानी 22/44 into 100 यानी 50% प्योर। अरे देखो 100% यदि प्योर होता तो 44 बनाता, और अब है 22 बना रहा है, तो कितना परसेंट प्योर हुआ, 50%। मतलब एक्चुअल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। इसको ऐसे ही लिखते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड परसेंटेज यील्ड। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगा देते हैं किसका, परसेंटेज यील्ड का। यहाँ पर
यही चीज है, इसको बोल देते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यील्ड वो होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में किया जा सकता था कि जैसे CaCO3 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है CaO प्लस CO2, तो 100 ग्राम हमने लिया था और इसने बनाया था 22 ग्राम। तो एक्चुअल थियोरेटिकली क्या होना चाहिए था? 100 से बनना चाहिए था 44, और हमारे बना क्या? 100 से बना 22। तो इसमें परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड हो गया एक्चुअल यील्ड 22.24 इंटू 100। देखो कई बार इंडस्ट्रीज में क्या होता है, सारे जो केमिकल्स होते हैं ना 100% प्योर होते नहीं। वो 100% प्योर होते नहीं, तो जो हमें थ्योरेटिकली 100% प्योर फॉर्म के हिसाब से स्टोइचियोमेट्री बनानी होती है, उसमें जो कैलकुलेशन आता है वो उससे अलग आता है। तो उसका रीजन यही होता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो लेट्स से 100% प्योर नहीं है, उसकी वजह से 100% प्योर प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट लगा देते हैं परसेंटेज यील्ड का, ठीक है ना, परसेंटेज यील्ड का। तो ये एक तरह से ये क्वेश्चन बन गया। जैसे एक क्वेश्चन और भी हम कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन है इन द रिएक्शन N2 gas plus 3H2 gas forms 2NH3। तो क्वेश्चन है if 28 gram N2 forms 17 gram NH3 then calculate percentage yield। then calculate percentage yield of the reaction। तो हमें परसेंटेज यील्ड निकालना है किसका? रिएक्शन का। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको A0 बोल देते हैं और इसको C0 बोल देते हैं। तो A0 यदि 100% प्योर मानेंगे तो 100% प्योर के लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 100% प्योर के लिए करते हैं 100% प्योर, तो ये तो आएगा क्या? थ्योरेटिकल यील्ड। तो A0 आ रहा है 1, तो हम लिख सकते हैं 1/1 इज C0/2 यानी 2। तो मास क्या आएगा? 34 ग्राम। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में थ्योरेटिकल यील्ड तो 34 है और हमें मिल कितना रहा है? 17। तो इसमें हम परसेंटेज यील्ड और हमारा थ्योरेटिकल यील्ड आया, थ्योरेटिकल यील्ड यदि हम बात करें तो थ्योरेटिकल यील्ड आया 34 ग्राम, और अपने पास जो एक्चुअल यील्ड है, एक्चुअल यील्ड जो है वो कितना है? 17 ग्राम। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? वो आएगा थ्योरेटिकल सॉरी एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो ये आएगा 50%। वो इसलिए होगा क्योंकि कोई ना कोई रिएक्टेंट इसमें इम्प्योर होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज यील्ड, मतलब परसेंटेज यील्ड इसलिए हम देखते हैं 100% यील्ड प्रोडक्ट का क्यों नहीं आता है, बिकॉज रिएक्टेंट्स इम्प्योर होते हैं। तो इंडस्ट्री में कई बार होता है कि जो रॉ मटेरियल है वो इम्प्योर है, तो उसके कारण हमें जो है वो स्टोइचियोमेट्री में थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये था परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट। तो देखो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने आज क्या किया है, हमने मास मास रिलेशनशिप देखा है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप देखा है, परसेंटेज प्योरिटी और परसेंटेज यील्ड के कॉन्सेप्ट देखे हैं। आने वाले लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आने वाले लेक्चर में हम कंसिडर करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, और पीओएसी, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये स्टोइचियोमेट्री जो थोड़ा कुछ दिन चलेगा, तो इस पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, और मोटिवेटेड रहिए, सॉल्व करते रहिए। तो मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट लेक्चर में।